Hello students, today we will study our chapter number 4 for class 7 for subject English. In the previous video we study our half story. Now we will read the remaining story. This young one in the pit were about 2 feet long and a couple of inches in diameter, and they were all, as far as I could judge, very much awake. They wriggled round and round the pit with great rapidity and kept lifting their heavy arrow-shaped head and looking at the lamp, flicking their tongue out and in. वो जो गड्ढे में वो जो सांप थे वो लगभग 2 फीट लंबे और कुछ इंच व्यास के थे, और जहाँ तक मैं समझ सक रहा था कि वे सभी बहुत अच्छे से जाग रहे हैं। वे बड़ी तेजी से गड्ढे के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और अपनी भारी और तीर के आकार की सिर को उठाकर दिए को देखते रहे, अपनी जीभ बाहर और अंदर घुमाते रहे। I counted 8 gaboon viper in the pit, but their coloration matched the leaf mold so beautifully that if I could not be sure I was not counting some of them twice. जैसे कि वो जो गड्ढे में जो 8 गैबून वाइपर उन्होंने गिने, तो 8 गैबून वाइपर उन्हें दिखे जिनका रंग पत्ती के मोल्ड से इतनी खूबसूरती से मेल खा रहा था कि उन्हें फिर से गिनने की उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। Just at that moment my friend trod heavily on the edge of the pit, and a large lump of earth fell among the reptiles, who all looked up and hissed loudly. Everyone backed away hesitantly, and I thought it a very suitable opportunity to explain the point about my clothing. My friend, with typical Irish generosity, offered to lend me his trousers, which were of stout twill, and the strong pair of shoes he was wearing. उसी क्षण मेरा मित्र गड्ढे के किनारे पर जोर से लपका तो मिट्टी का एक बड़ा सा पत्थर रेप्टाइल्स के बीच में जाकर गिरा, जो सभी ने देखा और उन रेप्टाइल्स ने देखा और जोर से फुसफुसाए। हर कोई जल्दी से पीछे हट गया, और मैंने सोचा कि ये मेरे कपड़ों के बारे में बात समझने का एक बहुत ही उपयुक्त अवसर है। मेरे दोस्त ने विशिष्ट आयरिश उदारता के साथ मुझे अपनी ट्राउज़र देने की पेशकश की, जो कि ट्विल की थी, और जूते की मजबूत जोड़ी जो उसने पहन रखी थी वो उसने मुझे देने की बात कही। Now the last of my excuse was gone, and I had not the nerve to protest further. We went behind a bush and exchanged trouser and shoe. My friend was built on more generous line than I, and the cloth were not exactly a good fit. However, as he rightly pointed out the beat of trouser leg I had to turn up and at the bottom would act as additional protection for my ankle. अब मेरी आखिरी मेहनत भी ख़त्म हो गई थी। मुझमें और विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। हम एक झाड़ी के पीछे चले गए और पतलून और जूते का आदान प्रदान किया, चेंज कर लिया। मेरे दोस्त को एक से अधिक उदार लाइनों में बनाया गया था और कपड़े बिल्कुल ठीक नहीं थे। हालांकि उन्होंने ठीक ही बताया, पतलून पैर के थोड़ा सा नीचे के हिस्से मुझे नीचे की ओर मोड़ना पड़ा, जो मेरी टखनों के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, जो कि इस रूप में यूज़ हो सकता था।
Clearly, I approached the pit. My audience was clustered round, twittering in delicious anticipation. I tied the rope round my waist with what I very soon discovered to be a slip knot and crawled to the edge. My descent discover my descent had not got the airy grave of a pantomime fairy. The sides of the pit were so crumbly that every time I tried to gain a foothold, I dislodged large quantity of earth, and as this fell among the snakes, it was greeted with peevish hisses. I had to dangle in my mid-air, being gently lowered by my companion, while the sleep knot grasped me very uh, tired tighter round the waist. Eventually I looked down and I saw that my feet were about a yard from the ground. I shouted to my friends to stop lowering me as I wanted to examine the ground I was to land on and to make sure there were no snakes lying there. After a careful inspection, I could not see any reptile directly under me, so I shouted lower away in what I sincerely hoped was an interrupted tone of voice. As I started on my descent again, two things happened at once. Firstly, one of my borrowed shoes fell off, and secondly, the lamp, which none of us had remembered to pump up, died away to a faint glow of light, rather like a plum cigar end. At that precise moment, I touched the ground with my bare foot. I cannot remember ever having been so frightened before or since. भयानक रूप से मैं गड्ढे के पास पहुंचा। मेरे दर्शक जो थे एक स्वादिष्ट प्रत्याशा के साथ चहचहा रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। मैंने अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी, जिसे मैंने बहुत जल्द एक पर्ची की गोट के रूप में पाया, और किनारे पर रेंगता हुआ मेरा पेटोमाइन परी की हवादार कब्र नहीं मिल रही थी। गड्ढे के किनारे इतने उबड़ खाबड़ थे कि हर बार जब मैंने अपने पैर जमाने की कोशिश की तो मेरे पैर बड़ी मात्रा में मिट्टी को उखाड़ फेंक रहे थे, और जैसे ही यह सांपों के बीच गिर रहे थे वो जोर जोर से हिस रहे थे। मुझे हवा में झूलना पड़ा। मेरे साथियों द्वारा धीरे धीरे मुझे नीचे खिसकाया गया। जब स्लिप नॉट ने मुझे कमर के चारों ओर कसकर पकड़ लिया, अंत में मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि मेरे पैर जमीन से लगभग 2 गज की दूरी पर थे। मैं अपने दोस्तों से चिल्लाकर एमपीओ के नीचे उतार रहा था, क्योंकि मैं उस जमीन की जांच करना चाहता था जिस पर मुझे उतरना था। ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वहाँ कोई सांप तो नहीं है। सावधानीपूर्वक मैंने निरीक्षण किया। बाद में मुझे सीधे नीचे कोई सरीसृप दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें चिल्लाया कि नीचे उतारो, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह जो आवाज़ थी वो निडर स्वर था। जैसे ही मैंने फिर से उतरना शुरू किया तो 2 चीज़ें मेरे साथ हुई। पहला कि मेरा जो उधार लिया गया जूता था वो स्लिप हो गया, और दूसरा, जो मेरे हाथ में लैम्प था वो उसकी चमक धुंधली होती जा रही थी। प्रकाश बल्कि एक मोटा सिगार अंत में
अंत की तरह होते जा रहा था। उसकी सटीक और भयानक उसका, हालांकि मुझे बाद में बहुत जो मैं डर था वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि जो पूर्व संध्या थी मुझे याद नहीं आ रही थी, जिससे कि मुझे पता लग रहा था कि मेरा डर बढ़ते जा रहा है। इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।